Okay, so take one more question and start solving this. Question number 6. Find eigenvalues and eigenvectors for this matrix. So A is equal to 2 1 1, 2 1 1, 1 2 minus 1, and 1 minus 1 2, 1 minus 1 and 2. Okay. So in solution, what is your first step? Character. First we need to find the eigenvalues, and for that consider the characteristic equation. Okay. So consider the characteristic equation, which is lambda cube minus trace of A into lambda square plus minor of first, minor of second, minor of third diagonal element times lambda minus determinant of A equal to 0. Okay, so can you tell me these values? So lambda cube minus what is trace? 6 है ना, lambda square. What is the minor of first? 3. Second 3. and third is also 3. Okay, times lambda. What is the determinant? क्या है? -3. So it will be +3, correct? Okay, so lambda cube minus 6 lambda square 9 lambda plus 3 equal to 0. Correct है ना ये? Is this correct? Determinant -3 था ना? Okay. डिटर्मिनेंट क्या है इसका? -3 है. नहीं सर, मुझे 0 आ रहा है तो. हाँ, I also feel it is 0. Yes, sir, 0. It has to 0. Yes, 0. Okay, क्योंकि इस पे एक और रिमार्क मुझे आपको देना है. You will come to know. So your this is your characteristic equation. Okay, please check carefully. अगर कहीं पे भी एक सिंगल मिस्टेक भी हो जाती है ना, इसके आगे पूरा पार्ट रॉन्ग जाएगा, क्योंकि आपको पता है द होल कैलकुलेशन इज डिपेंड ऑन योर आइगन वैल्यूज. ओके, एंड नाउ टेल मी द आइगन वैल्यूज. ओके, 3 + √3. 3 + √3. Sir, 3 0 और 1 आ रहे. 3 0 आ रहे सर. हाँ, on Kelsey I think we'll get only two values, 3 and 0. Yes sir. Okay, and now the question is, what is that third repeated value? Okay, that that Three. has to either 3 or That's 3. 0 है ना. इन दोनों में से, क्योंकि कैल्शियम में आपको डिस्टिंक्ट रूट समझ में आते हैं, सो दैट नंबर हैज टू 0 और 3. बट अगर आप 0 लेते हो तो सम आपकी 6 नहीं आ रही है, सो इट हैज टू 3. करेक्ट ना? Yes, sir. ये रिजल्ट अभी आपको समझ में आना चाहिए. सो योर आइगन वैल्यूज आर 3 3 एंड 0. ओके, 3 3 एंड 0. ओके, so case 1. Now let me calculate the eigenvector corresponding to 0. So let me calculate first eigenvector corresponding to lambda is equal to 0. So for that, let capital X, let capital X, which is equal to x1, x2, x3 be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 0. Then it implies a minus lambda times I of x is equal to 0, but your lambda is 0, so that gives you only ax is equal to 0. Correct na? Yes sir. Okay, so what is your A matrix? This is your A matrix. Let me copy from here. Okay, so this A matrix times X matrix is equal to 0. There is no change in the diagonal entries as your eigenvalues are 0. Okay,
And now just consider the augmented matrix and reduce this into echelon form. So consider your augmented matrix is say 2 1 1 0 1 2 minus 1 0 1 minus 1 2 0. Now so interchange first and second row. So we'll get 1 2 minus 1 0 2 1 1 0 and 1 minus 1 2 0. Now what is your next operation? This is your non-zero number. Make all the below elements to be 0. Okay, you have to make this interest to be 0. So on so what is the operation on R2? I2 minus 2R. हाँ, so there is no change in your first row. यहाँ पे क्या आएगा 0. So 1 minus 4 minus 3. Okay, 1 plus 2 3. Correct na? Next subtraction 0, then minus 3, then 3. Okay, and this can be converted into 1 2 minus 1 0. Can you tell me what is the final echelon form? Next row 0 minus 1 1 0 and last 0 0 0. ओके, अभी आपको ये समझ में आ रहा है. ओके, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ऐसे सॉल्व करना है, बट जब आप थ्योरी में हो तो प्रॉपर इन बिटवीन आपको ऑपरेशंस मेंशन करने हैं. ठीक है, टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. एंड नाउ दिस इज योर फाइनल echelon form and you can see the rank of this augmented matrix which is equal to rank of A, which is equal to 2, which is less than number of variables, which are 3. Therefore system has infinite solution, and to calculate that solution we have to rewrite this system. So x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 0 and minus x2 plus x3 is equal to 0. So here you can see there are two equations and there are 3 variables. So your difference is 1. It means we have to assign one value for one variable. So let me assign x3 as t, where t belongs to r. So what is x2? x2 is also t. And what is x1? What is x1? Minus t. Minus t. Minus Done. t. So what is your final vector? Therefore, can you tell me directly? X is equal to Minus 1 1 and 1 t outside the bracket. So you can directly write down that part. So this become the eigenvector. Is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 0. Done. ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस में अभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज क्लियर. आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है डायगोनलाइजेशन, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट. इट इज टोटली डिपेंड ऑन दिस. आपको वहां पे सारे आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने, फिर उसको मैं रिड्यूस करने वाला इनटू डायगोनल मैट्रिक्स. सो दैट नेक्स्ट टॉपिक इज टोटली डिपेंड ऑन दिस कैलकुलेशन. ओके, एंड नाउ लेट मी कैलकुलेट फॉर द नेक्स्ट केस व्हिच इज 3. ठीक है, सो केस 2, now we'll calculate eigenvector corresponding to lambda is equal to 3. So in this case also let again x which is equal to x1 x2 x3 p the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 3. Okay, then we have a minus lambda I times x is equal to 0, that is a minus 3 times I times x is equal to 0. So just subtract 3 from matrix A. So what will be your minus first? 1 1 Minus 1 1. 1 Okay, next. 1 minus 1 minus 1 Okay, next. 1 minus 1 minus 1. Okay, good. So times x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Now we have to just solve this system. So consider augmented matrix. अभी ये trivial calculation है. So consider this augmented matrix. minus 1 1 1 0 1 minus 1 minus 1 0 1 minus 1 minus 1 0. So what is the echelon form?
हाँ नेक्स्ट 1 minus 1 minus 1. ये सभी जीरो हो जाते हैं। हाँ एवरी एंट्री विल बी जीरो है ना, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐड Yes. करोगे तब आप ये जीरो ही होने वाला है ना, Yes. ठीक है. Okay, so here you can see the rank of this matrix, which is equal to rank of A, is here 2, which is less than number of variables which are 3. तो सिस्टम को इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आ रहा है, बट डिफरेंस 2 का है यहाँ पे. ओके, सो इफ आई रिराइट दैट लीनियर सिस्टम, यू विल गेट माइनस x1 plus x2 plus x3 is equal to 0. Okay, so there is only one equation but there are 3 variables, so difference is 2. It means we have to assign 2 values for 2 variables. So can you tell me now, anyone, इसके आगे? X3 is equals to T. So let x3 is equal to t, where t belongs to r, and X2 is equals to M. okay, let me take m. So m belongs to r. So that implies x1 is equal to what? Their sum, है ना? So t plus m. Correct है? Yes, sir. Okay. So Yes, can you sir. tell me that vector, so capital X, which is equal to x1, x2, x3. Can you tell me directly या कैसे बोलोगे आप? या कॉम्बिनेशन में लिख लेता हूँ, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो. That is nothing but t plus m. Next is m. Next is t. So what happen if I take t common? Can you tell me? 101. 1 0 1, great. Next plus m Plus M common 1 1 0. 0. ठीक है, या तो ये स्टेप अगर आपको स्किप करनी है तो आप डायरेक्टली लिखो आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू, पहला वेक्टर क्या होता है, आप बस क्या करो, फर्स्ट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए जस्ट पुट t इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में. तो x1 की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 0. लेट मी शो यू प्रॉपर. हाँ, t इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 0. तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, x2 की वैल्यू आ जाएगी 0 और x3 की वैल्यू आ जाएगी 1, सिमिलर टू दिस वेक्टर. ठीक है, कॉमा एंड व्हाट इज योर सेकंड वेक्टर. अगर आपको ऐसे नहीं जाना है, अभी यहाँ पे समझ में आ रही है आपका पहला वेक्टर है, आपका सेकंड वेक्टर है, बट अगर आपको इस मेथड से नहीं जाना है तो आपको एक केस में t1 लेना है और एक केस में t0 लेना है. सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट केस, नाउ हियर t0 एंड m इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो इन दिस केस if I put t equal to 0, m is 1, so 1 1 0. 1 0. तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हो. ठीक है, आर दी आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 3. डन. ओके, सो आई थिंक ये रिपीटेशन का पार्ट भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है. ठीक है, सो नाउ आई विल टेक ओनली वन एग्जांपल एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो ये आपको करना है और क्विकली टेल मी द फाइनल आइगन वेक्टर. Okay, now we'll take the last example of this part. Question number 6 या 7? 7, sir. 7 ना, ठीक है. Let me give you that matrix. A is equal to, okay, सर तीनों वैल्यू सेम आने वाला केस. वो हाँ वही ले रहा हूँ. ठीक है, let me give you a simple example of that. 2 1 0 0 2 1 0 0 2. बोलो कैसे करोगे और आंसर आप मुझे डायरेक्टली फाइनल आंसर बोलो. आई विल नॉट सॉल्व दिस एग्जांपल, आई डायरेक्टली वांट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. Sir, eigenvalues are 2 2 2. ओके, सो अभी यहाँ पे प्रॉपर मेथड से जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. ओके, सो इन सॉल्यूशन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस, सिंस given matrix is in
upper triangular form, therefore eigenvalues lambda is equal to what? 2, 2, 2. Done. आगे आप ये कैलकुलेट करो. जस्ट फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 2. फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 2. लेट मी ओपन दैट फाइल अगेन. करो. फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 2. मैं आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं, आपको ही करना. और जस्ट टेल मी दैट फाइनल आंसर. व्हाट इज योर एक्स? बोल. वन जीरो जीरो है. 1 0 0 करेक्ट है. अदर स्टूडेंट्स? क्योंकि वो डायरेक्टली इक्विवेलेंट फॉर्म में ही जा रहा है ना. यस सर. हाँ. Yes. Yes, sir. This matrix is an echelon form. Rank is 2. It means One you will zero get zero. only One one zero eigen zero. vector. तो यहाँ पे 2 आपका 3 times repeat हो रहा है, but still you will get only one eigen vector. In some cases you will get 2 eigen vector. In some cases जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके. सो इट डिपेंड ऑन द रैंक. आपको ये नहीं सोचना कि क्या, ये डिपेंड ऑन द रैंक. ठीक है. बट आपको यही क्वेश्चन है. 3 के तो नहीं आएंगे, डोंट वरी. मतलब है नहीं बुक में ऐसा कोई एग्जांपल, तो चांसेस भी ज्यादा नहीं. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है. अभी कुछ डाउट्स है इसमें? आइगन वैल्यूज के रिलेटेड, आइगन वेक्टर्स के रिलेटेड कुछ डाउट है कैलकुलेशन में? क्योंकि अभी इस पे रिमार्क्स मैं आपको देने वाला हूं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. So you have to answer all those remarks. Clear? Any doubt? कुछ है तो आप बोलो. अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बोलो, क्योंकि इस यूनिट में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसलिए मैंने अराउंड 7 क्वेश्चन लास्ट 3 लेक्चर से सेम टॉपिक रिपीट कर रहा हूं. ठीक है. ओके. सो नाउ लेट मी स्टार्ट वन बाय वन. ठीक है. सो विल डिस्कस नाउ फ्यू रिमार्क्स. अभी आपको सारी चीजें क्विकली समझ में आ जाएगी. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज. कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ मैं स्किप करने वाला हूं. ओके. जहां पे मुझे इजी लग रहा है, आई विल गिव यू. ओके. सो फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज. ओके. इफ यू कंसीडर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, आइगन वैल्यूज कितने आते हैं आपके पास? हाउ मेनी आइगन वैल्यूज आर देयर? Less than or equal to. Eigen values. I'm talking about eigen values. Sir, for 2 close to 2 eigen. हाँ. So for n by n कितने आइगन वैल्यूज आनी चाहिए? कंपलसरी n. करेक्ट ना? Yes sir. क्योंकि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसकी डिग्री भी क्या आती है, या नहीं आती है ना? इफ यू कंसीडर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसकी डिग्री क्या है? उस पॉलिनोमियल की 3 है ना? 3 डिग्री है तो आपको 3 रूट्स तो कंफर्म मिलने वाले. सो इन जनरल इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर n by n, इट गिव्स यू n आइगन वैल्यूज. इसमें वो रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन वो पार्ट छोड़ो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. रिपीटेशन में आने दो, नॉन रिपीटेशन में आने दो, बट देयर आर n रूट्स. करेक्ट? समझ में आ रहा है पहला रिजल्ट? Yes sir. ओके. नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है. ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. इन एवरी एग्जांपल योर ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ द आइगन वैल्यूज. क्लियर? Yes sir. एंड योर डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है आपके पास. डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज. अभी मेरा एक क्वेश्चन आप सुनो. ठीक है. सो लेट मी शो यू दैट एग्जांपल डायरेक्टली. हाँ, ये एक मैट्रिक्स था. ठीक है. इसके आइगन वैल्यूज क्या है?
3 0 3। अगर मैं आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन देता हूं, दिस इज योर गिवन मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 3 0 3। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिटरमिनेंट? Zero. Zero. Okay, Product. because determinant is nothing but product of the eigen values, तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू आपकी 0 है, इसलिए आपका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। अगर मैं इसको डिलीट भी करता हूं, है ना, if I say that one of the eigen value of this matrix A is 0, then it directly implies determinant of that matrix is 0. Clear na? Yes, sir. Okay, so you can check the determinant using eigen values. ठीक है? सर हाँ बोलो ना। सर वैसा वाला केस आता है क्या? समझो 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना डिग्री 2 का, करेक्ट ना? हाँ, और उस केस में अगर रूट्स नहीं आ रहे तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आइगन वैल्यूज ही नहीं आएंगी। ये रियल में ऐसा हुआ है होता ना, है? तो रूट्स आ ही जाएंगे ना। योर मैट्रिक्स एंट्रीज आर रियल। अच्छा हाँ। तो मतलब ऐसा केस नहीं होता ना जहाँ पे नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, वो केस ही नहीं आएगी जो आप बोल रहे हो ना, दैट कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स रीजन। अच्छा, तो ठीक है। कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए एंट्रीज भी कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है? हाँ सर। ओके, या सिंपली आपको ये द होल सिलेबस इज ऑल अबाउट रियल नंबर्स, सो डोंट वरी अबाउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? ओके सर। The eigenvalues of upper and lower triangular or diagonal matrix are nothing but the elements on a principal diagonal. ये भी आपको अभी समझ में आ रहा है क्लियरली, मैंने एग्जांपल के साथ भी शो किया था, अभी प्रीवियस एग्जांपल भी वही था। ठीक है? नाउ दिस इज द रिजल्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट, क्या होता है इन जनरल रिजल्ट? डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। अभी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन 0। करेक्ट ना? क्योंकि अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 आती है तो आपका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा और A इनवर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया ये फिफ्थ रिमार्क? A inverse exists, determinant of A is not equal to 0, that is nothing but all eigen values are non-zero. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हाँ, ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसका प्रूफ मैं आपको नहीं देने वाला, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। शेयर कर देता हूं मैं एमसीक्यूज तो आपको समझ में आएगा। सो इफ lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n, these are the eigen values of this square matrix A of order n by n. ठीक है? तो A ट्रांसपोज के और A मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा इक्वल आते हैं। यू कैन फाइंड अ रीजन, दिस इज अ ट्रिवियल केस। ओके, इन एवरी केस आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A एंड आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज आर ऑलवेज इक्वल। पहला पार्ट, because their determinant are also equal, their traces are also equal. क्लियर ना? आपको पता है A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम आता है, दोनों का ट्रेस भी सेम आता है, तो उसके आइगन वैल्यूज भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। नेक्स्ट, ये रिजल्ट क्या है बेसिकली? lambda 1, lambda 2 and lambda 3 if these are the आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स से 3 by 3, तो आप इससे A स्क्वायर के भी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहां से A क्यूब के भी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, A रेज़ टू 4 के भी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट आर दोज? सो इन जनरल A रेज़ टू m has eigen values lambda 1 raised to m, lambda 2 raised to m up to so on lambda n raised to n. तो A स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या आएंगे? lambda 1 स्क्वायर, lambda 2 स्क्वायर, lambda 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सेकंड रिजल्ट समझ में आ गया सबको? यस? सो Yes, sir. if I say that 1 2 3 these are the eigen, ये MCQs ऐसे, these are the eigen values of A matrix. We don't know that matrix, but मैंने आपको दिया है कि ये जो A मैट्रिक्स के इसके आइगन वैल्यूज क्या है? 1 2 3। कैन यू टेल मी व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर? 149. 149। ऐसा 149। ऐसे एमसीक्यूज है आपको। ठीक है? नेक्स्ट, A इनवर्स के आइगन वैल्यूज। ओके, अभी A इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब ये सारे वैल्यूज नॉन जीरो आएंगे, सो अंडर दैट कंडीशन ओनली। रिमेंबर, A इनवर्स आपका तभी एग्जिस्ट होता है जब आप ये सारे आइगन वैल्यूज आपके नॉन जीरो आते हैं। ओके, ओनली इन दैट केस दिस A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, दिस इज योर फिफ्थ रिमार्क। So if lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the eigen values of matrix A, then the eigen values of then the eigen values of A inverse are 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda 3 and so on. Clear? Yeah, simply lambda 1 raised to minus 1, lambda 2 raised to minus 1, lambda 3 raised to minus 1. These are the eigen values of A inverse. Okay? Next, A के आइगन वैल्यूज अगर आपके पास lambda 1, lambda 2, lambda 3 है, सो K टाइम्स A, मतलब K मतलब लाइक से 4 into A,
So what are the eigenvalues of 4 into A? 4 into lambda 1, 4 into lambda 2, 4 into lambda 3. So in general K into A के eigenvalues क्या आते हैं? K into lambda 1, K into lambda 2, K into lambda 3 and so on. Not only this, also you can find eigenvalues of A minus K times R. K is the number, K is a real number. So A minus K times R. So in general the eigenvalues of A minus K times R are lambda 1 minus K, lambda 2 minus K, lambda 3 minus K and so on. So these results are very important for MCQs. ठीक है, समझ में आ रहे हैं अभी ये सारे रिजल्ट्स? एटलीस्ट यू कैन विजुअलाइज दिस नाउ. आप इमेजिन कर सकते हो ये सारे रिजल्ट्स. ओके, Yes, sir. so this is all about the eigen properties of eigen values. Let me erase this part. Okay, next is properties of eigenvectors. So now if I consider a matrix of order say 3 by 3, can you tell me what is the count in general? What is the count of number of eigenvectors? बोलो. In general, if I consider a matrix of order 3 by 3, तो वहां पे आपको कितने eigenvectors मिलते हैं? What is that count? Is it always equal to 3? 3 No, or sir. less than 3. पहला question. 3 or less than 3. Yes, sir. Less or equal to Less than equal to Less 3. equal 3. So in some cases it is equal to 3, in some cases it is equal to 2, in some cases it is equal to 1. है ना? हमने ये सारे एग्जांपल लिए थे. पहला जो एग्जांपल था जहां पे आपको 3 आइगन वेक्टर मिल रहे थे, सेकंड एग्जांपल था या इन बिटवीन वी हैव टेकन वन एग्जांपल वेयर वी विल गेट 2 आइगन वेक्टर्स. अभी आज के लेक्चर में भी हमने सॉल्व किया है. और जो लास्ट एग्जांपल था जहां पे हमें एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है. So in general, the number of eigenvectors are always less equal here. Okay, very But the important. eigenvalue should be equal to always 1. Then Eigenvalues are always equal to number of order of that matrix. yes. Okay, eigenvalues का count fix है. eigenvector का count change होता है. Depend on the repetition. Depend on the repetition. ठीक है? Yes. Okay. Next result क्या है? If x is the eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda, then k into x is also eigenvector of that matrix corresponding to same lambda. इसका मतलब क्या मैं आपको दिखाता हूँ. अभी आपने ही क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि 1 0 0 ये आपका आइगन वेक्टर है. तो in general k into x is also become the eigenvector of this matrix. मतलब क्या है? 2 0 0 is also the eigenvector of this matrix. You can check. 3 0 0 is also the eigenvector of this matrix. 100 0 0 is also the eigenvector of this matrix. Minus 5 0 0 is also the eigenvector of this matrix. So at the end result क्या है? There are infinitely many eigenvectors corresponding to lambda. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो आंसर वो in terms of t आता है. करेक्ट ना? हाँ? Yes, sir. आपने यहाँ पे t इक्वल टू 1 लिया था, बट यू कैन टेक t इक्वल टू 2 आल्सो, यू कैन टेक t इक्वल टू 3 आल्सो, यू कैन टेक t इक्वल टू 4 आल्सो. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? ये जो आइगन वेक्टर है ना, इसको आप k से मल्टीप्लाई कर सकते हो. दैट आल्सो बिकम द आइगन वेक्टर. Whether this point clear? Why k into x is always the आइगन वेक्टर? समझ में आ रहा है अभी? Because that solution always comes in terms of t. तो t को आप कुछ भी असाइन कर सकते हो. So if x is the आइगन वेक्टर, if x is the eigenvector, k into x where k is non-zero is also the eigenvector of that matrix. Any doubt in remark 2? बोलो. Any doubt? No, sir. Okay, हाँ. So now this part is sir. totally. बोलो. Sir, I was disconnected for 2 minutes, sir, because of my net, sir. Can you please just explain in short, sir? Okay, हाँ. सो रिमार्क 2 क्या है? बेसिकली अभी आपने ऊपर एक कुछ क्वेश्चन लिखा था जिसका आपका सॉल्यूशन आ रहा था x1 is t, x2 is say minus t. Sir, can you start with remark 1, please? Okay, I think now that okay, ठीक है. रिमार्क 1 क्या है? फॉर मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज लेस इक्वल 3. ओके, तो अगर आप एक 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हो, हमने कुछ ऐसे एग्जांपल लिए जहां पे हमें 3 आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे. Okay, we have taken some examples where we'll get only 2 eigenvectors. और अभी जो लास्ट एग्जांपल था जहां पे हमें बस एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है.
So what is the count of number of eigenvectors in general for any matrix of order 3 by 3? तो वो count क्या होता है? Less equal 3. Yes, sir. It is always less equal order, है ना? So in some cases it is equal to order, in some cases it is strictly less than order, in some cases it is equal to 1 or 2 like that. Okay. So at the end number of eigenvectors का जो count है वो order से less equally आता है. Clear? पहला remark. Yes, sir. सेकंड रिमार्क क्या था? इफ x इज द आइगनवेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे मेरा आइगनवेक्टर आप क्या लिखते हो डायरेक्टली? 1 -1 1. करेक्ट ना? आप यही लिखते हो ना? हाँ. कैन आई से दैट दिस एज द आइगनवेक्टर? कैन आई से दैट दिस x2 एज द आइगनवेक्टर? Yes, sir. क्योंकि आपको बस करना क्या है? लेट अस कंसीडर t इक्वल टू 2. यहाँ पे आप t इक्वल टू 1 लेते हो, ये कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड ऑन यू. बट इफ यू कंसीडर t इक्वल टू 2 यू विल गेट वन मोर आइगन वेक्टर. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? अगर x आपका आइगन वेक्टर है तो k टाइम्स x इज आल्सो द आइगन वेक्टर. तो आप किसी भी केस से मल्टीप्लाई कर सकते हो. आप 2 से मल्टीप्लाई करो ये मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट मिल जाएगा. So in general, yes, x is the eigenvector, k into x is also the eigenvector, but provided that k is non-zero. बट सर हाँ बोलो ना. अभी फर्स्ट पॉइंट में तो हमने ये किया ना डिसाइड कि लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स. तो सेकंड इस पॉइंट में ये होगा कि इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो रहे हैं. नो. ओके ठीक है. ओके गुड क्वेश्चन. सी हियर विल टॉक अबाउट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू. ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू. अभी आप यहाँ पे लिखते समय आपको मतलब सी हियर मैथमेटिकली आपको लग रहा है कि यहाँ पे 2 आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू 1 आइगन वैल्यू, बट ये दोनों इक्वल है. दिस आर द डिपेंडेंट वेक्टर्स. मैं ये इसको लेके जा सकता हूं या तो इसको लेके जा सकता हूं. करेक्ट ना? बट दोनों क्या है? एक ही आइगन वैल्यूज के वेक्टर है ना, आइगन वेक्टर. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट, यस दिस द होल स्टेटमेंट इज फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू. सो इफ आई कंसीडर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द आइगन values, there how many eigenvectors you will get? Lambda 1 के corresponding 1, lambda 2 के corresponding 1, lambda 3 के corresponding 1. Okay, तो जैसे कि फर्स्ट केस में मुझे 3 मिल रहे हैं आइगन वेक्टर्स 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए. बट अगर lambda 2 और lambda 3 इक्वल आते हैं, if these two are equal, lambda 2 lambda 2, तो उस केस में आपको पता है कि आपको एक भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकते हैं. करेक्ट है ना? हाँ सर. हाँ. सो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द आइगन वैल्यू, नॉट विद द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू यूनिक आइगन वैल्यू. ये होता ही है, बट आप ये सारे कंसीडर नहीं करते हो. इसलिए कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि x1 इज द वन ऑफ द आइगन वेक्टर, x2 इज वन मोर आइगन वेक्टर. ओके, आपको पता है कि इन जनरल x इज द आइगन वेक्टर, k टाइम्स x इज आल्सो द आइगन वेक्टर. ठीक है? सो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द आइगन वैल्यू. ओके. सो एग्जाम में अगर एमसीक्यू पूछा है कि मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स कितने हैं वो निकालो, और ऑप्शन में इनफाइनाइट भी है और लेस देन 3 जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो भी है, तो वील सिलेक्ट लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि दे विल मतलब उनका जो एम है वो इस पे है ही नहीं. सी इसका रीजन क्या मैं आपको बोलता हूं. अगर आप ये बोलते हो ना 1 - 1 1 ये आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3, ये अगर आपने लिखा है स्टेटमेंट, ठीक है, तो अगर आप 2 - 2 2 इसको भी कंसिडर करते हो ना, इट विल नॉट चेंज योर क्वेश्चन, मतलब इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया. आपने बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आप बोल रहे हो कि वो भी एक आइगन वेक्टर है, तो उससे कुछ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला. सो एट द एंड ये जो इनफाइनाइटली मेरे आइगन वेक्टर्स है ना, x1 x2 x3, इसमें से मुझे कोई भी एक चाहिए. आई जस्ट वांट ओनली वन आइगन वेक्टर दैट बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सेट. ठीक है? तो अगर एग्जाम में भी आता है तो आपको वो लेस इक्वल यानी सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना x1 x2 x3, इसका ऐसा कोई रोल है ही नहीं. ओके, सो डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट. गॉट इट सर. ओके. तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट का आंसर 1 - 1 1 आ रहा है आइगन वेक्टर का, और कुछ स्टूडेंट का आंसर 2 - 2 2 आ रहा है, तो दोनों करेक्ट ही है, दोनों को फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है? तो आप ये लिखो एग्जाम में, या तो ये लिखो, दैट विल नॉट मैटर. एंड देन आई जस्ट वांट वन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू. दैट इज माय एम. इफ इट इज डिस्टिंक्ट तो एक ही मिलेगा. इफ इट इज इन रिपीटेशन मे बी आई विल गेट 2 आइगन वेक्टर्स. ठीक है? ओके.
नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, जस्ट फॉर 1 मार्क और फॉर एमसीक्यू यू हैव टू रिमेंबर ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। टू आइगन वैल्यूज टू आइगन वेक्टर्स x1 and x2 are said to be orthogonal if x1 dot x2 transpose is equal to 0. x1 dot x2 transpose equal to 0. Let me just explain with one example. I think that सर I आएगा ना x1 डॉट x2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। नहीं, लेट मी शो यू। ऑर्थोगोनल है ना? ऑर्थोगोनल है तो ये 0 ही आना चाहिए। कि उसका मीनिंग क्या है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी जस्ट इरेज दिस अननेसेसरी पार्ट। तो ये एग्जांपल मैं यहीं पे रख देता हूँ। सर हाँ सर, और सारे आइगन वेक्टर्स के लिए काम करना चाहिए सर, ये जो भी आएगा? नहीं। सो दैट इन दैट केस दैट मैट्रिक्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने आपको पहले बोला कि हम उस वे से नहीं जा रहे। ओके, तो अब अगर आप बुक में देखोगे ना, देयर इज अ वन स्पेसिफिक सेक्शन अबाउट दिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, उसको डेफिनेशन जैसे ही याद रखो। ओके, सो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो रिजल्ट क्या है बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? रिजल्ट देखो क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, मैं रिपीटेशन का पार्ट इसमें नहीं देख रहा हूं, है ना। मतलब अगर 1 2 2 आइगन वैल्यूज है, सो आई विल ओनली कंसीडर 1 and 2। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर, 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ओके, सो आई एम फोकसिंग ओनली ऑन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो आप बोलोगे सर अगर 1 2 2 में, ओके, अगर मुझे 2 के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर मिलता है, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे 2 मिलते हैं तो उस केस में ये रिजल्ट फेल होता है। ठीक है, उस केस में रिजल्ट फेल होता है। ओके, इसलिए इसको और इन डिटेल में मैं नहीं लेके जाना चाहता हूँ, बट इन जनरल यू कैन रिमेंबर लाइक दिस स्टेटमेंट ओनली कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जो आपको आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ये इन जनरल थ्योरम है बेसिकली। ठीक है, जो आपको बस 1 मार्क के लिए आने वाला है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, बुक में शायद रहेगा, बट जो मेरी मेथड है ना, उस पे आप कहीं पे भी ऑर्थोगोनल मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 2 2 में, ओके, सी अगेन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आई एम नॉट मतलब सजेस्टिंग यू टू गो इन डिटेल अबाउट दिस पार्ट। 1 2 2 में अगर आपको ये तो कंफर्म पता है कि 1 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलने वाला है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर एक मिलता है तो ये दोनों हमेशा ऑर्थोगोनल आते हैं। ठीक है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग 2 मिलते हैं देन दे आर नॉट ऑर्थोगोनल। तो बुक में एक मेथड है कि अगर वहां पे 2 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं तो ये दोनों ऑर्थोगोनल कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए एक रिजल्ट है। ठीक है, तो वो अभी आपको सिलेबस में नहीं है, सो उतना कुछ इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो ऑर्थोगोनल रहते हैं। तो लेट मी गिव वन एग्जांपल ऑन दैट कि ऑर्थोगोनल कैसे होता है बेसिकली। या सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट हियर। लेट मी टेक वन मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 2 4 6 3 6 9, और इसमें इसके में आपको आइगन वेक्टर्स दे रहा हूं डायरेक्टली। इसके जो आइगन वेक्टर्स है, ओके, इसके जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है बेसिकली, जस्ट 1 मिनट है, देखने दो मुझे। ओके, सो छोड़ो, कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। सो लेट मी गिव यू द आइगन वेक्टर्स डायरेक्टली। सो इसके जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो क्या आते हैं, 1 2 3, फर्स्ट आइगन वेक्टर x2 इज -2 1 0 and x3 is 3 6 -5। ठीक है, अभी मुझे भी चेक करना होगा ये एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
सो उनका स्टेटमेंट क्या, अभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, दिस गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक्स और नॉट, है क्या ये सिमेट्रिक? Yes, sir. So it is symmetric, okay? You can consider your diagonal, diagonal के अराउंड वो मिरर इमेज है, तो सिमेट्रिक है, ओके। तो आप कोई भी दो आइगन वेक्टर्स सिलेक्ट करो, सो लेट मी सिलेक्ट x1 एंड x2 एंड लेट मी कैलकुलेट x1 डॉट विद x2 ट्रांसपोज, देयर प्रोडक्ट x2 ट्रांसपोज। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x1 मतलब 1 2 3, x2 ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स होगा, है ना? तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहला मैट्रिक्स कौन सा है, 1/3, और सेकंड क्या है, 3x1. It is defined, sir. नहीं ना, रिवर्स करना होगा ना मुझे, पहले ट्रांसपोज लेना होगा। One. Oh, okay. 3x1. पहले ट्रांसपोज लेना होगा, तो इसको मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ। आई थिंक x1 ट्रांसपोज इनटू x2, लेट मी लाइक राइट लाइक दिस। तो ये क्या होगा, 1 2 3, सर पहले वाला भी पॉसिबल था ना सर? प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा था हाँ, वहाँ सर। पे? हाँ सर, हो रहा था? डिफाइन हो 3 रहा था. x 1 एंड 1 x 3। मैंने शायद रॉन्ग लिखा, लेट मी टेक दैट अगेन। सो 1 2 3 एक ही डिफाइन होगा दोनों में से, हाँ। तो इसके ऑर्डर क्या है, तो ओके करेक्ट मैंने रॉन्ग लिखा, 3/1, करेक्ट यही डिफाइन होगा, ऑर्डर भी डिफाइन नहीं होगा। एंड x2 क्या है, -2 1 0, इसके ऑर्डर क्या है, 1/3, तो डिफाइन होगा नहीं, हाँ करेक्ट ना, करेक्ट। Yes, sir. सो ये ऐसे नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट लाइक दिस, आई वांट माय आंसर एज 1/1, सो लेट मी चेंज दिस। ऑर्थोगोनल का मीनिंग में आपको लेट मी एडजस्ट दिस, पहले मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो इसके ऑर्डर क्या है, 1/3, ओके। एंड देन आई विल टेक x2 -2 1 0, इसके ऑर्डर क्या है अभी, 3x1, सो लेट मी अगेन कंसीडर ट्रांसपोज हियर, हाँ। सो इसका आंसर क्या आने वाला है, व्हाट इज द फाइनल आंसर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ योर फाइनल आंसर, -2 2. 1/1 की एंट्री आने वाली है ना, ये 1/1, 1/1 मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1/1 मैट्रिक्स इज नथिंग बट रियल नंबर, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ, नाउ डू दिस प्रोडक्ट, बोलो मुझे, बोलो क्या आंसर आ रहा है, 0 1 into -2 plus 2 0, आंसर क्या आ रहा है, 0, therefore it is a orthogonal matrix, ओके। सो यहाँ पे बस मैंने ये ट्रांसपोज यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे नहीं है ट्रांसपोज, ओके, लाइक दिस, लेट मी करेक्ट इट हियर इटसेल्फ, क्लियर ना? इतना याद रखो, इस पे ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है? इसमें और बहुत सारे रिजल्ट है दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, सो जस्ट अवॉइड इट। रिजल्ट सिंपल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो ऑर्थोगोनल आते हैं। मैंने किसी हियर आई एक्सप्लेन ओनली फॉर हियर आई एक्सप्लेन एनी टू रैंडम वेक्टर्स, ओके। x1 और x2 के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे x1 और x2 आपके क्या ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स है। आप x1 के साथ x3 भी ले सकते हो, आप x2 के साथ x3 भी ले सकते हो, यू कैन चेक ऑल दिस कॉम्बिनेशन, दिस मस्ट बी ऑर्थोगोनल, दिस दैट कॉम्बिनेशन मस्ट बी ऑर्थोगोनल, ठीक है? क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गई? डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन है, कहीं पे कैलकुलेट नहीं करना है आपको, जस्ट रिमेंबर अ रिमार्क, क्लियर? Yes, sir. Got it, sir. ओके, Yes. एंड फोर्थ जो रिमार्क है, ये तीनों एक्सप्लेन किए मैंने, आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट करस्पॉन्ड टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। इसका मीनिंग क्या है कि एक 1 2 3 ये जो मेरा आइगन वेक्टर है दैट इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक आइगन वैल्यू। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 2 3 सेम मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 1 और 2 इन दोनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। रिजल्ट समझ में आ रहा है? If it is an eigenvector, then it is an eigenvector corresponding to unique eigenvalue of that matrix, of that matrix. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, मतलब 1 2 3 ये अगर मेरे आइगन वैल्यूज है, 1 का जो आइगन वेक्टर है और 2 का जो आइगन वेक्टर है, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। यही था ना रिजल्ट? अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। There is no case where the eigenvector of 1 and eigenvector of 2 are equal for one matrix. This is all about a single matrix. ठीक है? तो एक रिजल्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे ऐड नहीं किया है, और मैं आपको ऐड करके देता हूँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट में।
eigenvectors corresponding to eigenvectors are always linearly independent. If there are three eigenvectors, all these three vectors are independent. अभी आपको पता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक कैसे करना है. रिजल्ट क्लियर हो रहा है. eigenvectors are always independent. ओके, जो मैट्रिक्स का आप जितने भी आइगन कैलकुलेट करते हो ना, वो सारे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है. रिजल्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ लेट मी जस्ट टेक दिस 3-4 रिमार्क्स एंड देन वी स्टॉप. ये रिमार्क एक्चुअली सिलेबस का नहीं है, बट ये रह गया था फ्रॉम यूनिट 1, जिस पे एक क्वेश्चन भी मैंने डाला था. ओके, जस्ट वांट टू चेक कि आप कैसे सॉल्व करते हो. ओके, तो वो रिजल्ट क्या है देखो. पहला रिजल्ट क्या है, x1 x2 xn आर दी लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, देन देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम. ये आपको पता है, इफ वेक्टर्स आर डिपेंडेंट तो उनमें रिलेशन एग्जिस्ट होता है. ये पहला रिजल्ट है. नेक्स्ट क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ. हाँ, सो अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की ये तीनों रो वेक्टर, इफ ऑल थ्री रो वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, तो उसकी रैंक क्या होगी? उसकी रैंक क्या होगी? इट्स ऑर्डर. कैन यू टेल मी अ रीजन फॉर दिस? व्हाट इज द रीजन? What is the reason for this remark? पहले मुझे ये बोलो, अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं, उसकी ये तीनों रो वेक्टर अगर इंडिपेंडेंट आते, ये तीनों रो वेक्टर अगर इंडिपेंडेंट आते, तो आपका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो. क्योंकि आपको ये तो पता होगा ना कि डिपेंडेंट रोज अगर आते या डिपेंडेंट कॉलम्स अगर आपको कहीं पे दिखाई देते, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है. तो इसका ऑब्वियसली काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा? इफ दिस वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, इफ दिस वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, देन इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो. तो अगर आपका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, तो रैंक क्या आएगी? रैंक क्या आएगी? इट्स ऑर्डर. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज में आने वाले, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रूफ है, सबका प्रूफ मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, बट स्टिल जितना मुझे हो रहा है मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं. सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. और ये सेकंड रिजल्ट वही है कि अगर आपके वेक्टर्स इंडिपेंडेंट आते, ठीक है, तो वही वेक्टर अगर आप रो वाइज लिखते हो या कॉलम वाइज लिखते हो, ओके, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या आता है? नॉन जीरो आता है. अगर आपके वेक्टर्स डिपेंडेंट आते हैं, तो उसको अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हो, अगर आप उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो, तो वो 0 आता है. तो जो क्विज में जो क्वेश्चन था आपको, ओके, किसी को याद है क्या? किसी के पास है क्या? आई डोंट थिंक सो. तो क्विज में जो क्वेश्चन था, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? मैं देखता हूँ अगर मुझे क्विकली मिलता है मोबाइल में से. It's difficult now. Yes, okay, I got it. तो क्विज में एक मैंने लास्ट मे बी वो रैंडम था, तो आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया था. आई हैव गिवन 3 वेक्टर्स, और आपको बस ये चेक करना था whether these 3 vectors are dependent or independent. So let me give you that vectors. ऐसा क्वेश्चन था, the vectors 1 -1 1 2 1 1 and 3 0 2. एंड क्वेश्चन क्या था? these vectors are ऑप्शन थे, linearly dependent, independent and some more options. 2 are none of this and only 2 are dependent like that. ठीक है, ऐसा एक रिजल्ट. तो आपने कैसे किया इसको सॉल्व? व्हाट इज योर अप्रोच? Linearly dependent. आपने मेथड से किया होगा ना, C1 X1 लीनियरली डिपेंडेंट सर. यस सर, यस मेथड से किया. ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था कि अगर ये तीनों वेक्टर अगर इंडिपेंडेंट आते, तो इनका डिटरमिनेंट भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए. तो आप बस इसको मैट्रिक्स जैसे लिखो ना, एंड कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट. आपका अगर आंसर इंडिपेंडेंट है, तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए? नॉन जीरो. क्लियर ना? यस सर. शॉर्टकट
टू चेक वेदर गिवन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, बट ये पॉसिबल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर एक वेक्टर में निकाल देता हूं यहां पे तो फिर डिफिकल्ट होगा। ओनली व्हेन द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बिकम अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसी केस में डिटरमिनेंट पॉसिबल है ना। अगर एक और वेक्टर ऐड कर देता हूं यहां पे मैं, तो पॉसिबल है क्या इस मेथड से जाना? नहीं है। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो जस्ट चेक अ डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो डिपेंडेंट ही होगा ना, क्योंकि तभी तो डिटरमिनेंट 0 आ रहा। अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वो एक रिजल्ट रह गया था एक्सप्लेन करना, ठीक है। वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट एंड ओनली इफ देयर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। Sir, हाँ बोलो। if we got this question in written exam in subjective type question, so by which method we have to solve it? For MCQs you have to go with the regular method only, जो मैंने एक्सप्लेन की थी, okay? No, for subjective type. For subjective you have to go with the regular process, C1x1 plus C2x2 plus C3x3 equal to 0. Okay. ये आज का जो भी डिस्कशन था प्रॉपर्टीज और ये, दिस इज ऑल फॉर MCQ ओनली, ठीक है। सो हियर वी स्टॉप टुडे।